Assalamu alaikum students. Today we are going to start clarification of sugar juice prepared from sugar cane. The main objective at the clarification station is to increase the pH of the juice to a level where losses of sucrose by inversion are kept to the minimum in the subsequent sugar recovery process. जब हम शुगर रिकवरी का प्रोसेस करते हैं फ्रॉम शुगर केन, हमारा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम मैक्सिमम जो हमारे पास सुक्रोज है उसको, क्योंकि जब भी बात हुई है इवेपोरेशन की या टेम्परेचर राइजिंग की कहीं भी, तो हमने सुक्रोज जो है, जो डीकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं वो पीएच, टेम्परेचर, ये चीज़ें होती हैं। तो जो पीएच है, जो हमारी इससे पहले वाला जो प्रोसेस था, जब हमने यहाँ पर हमारे पास टैंडम से वो हमने रिसीव किया था, तो वहाँ पर जो है वो क्लैरिफिकेशन तक जो है वो हमने इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टू इट्स सब पार्टिकल्स लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो हमें तो सुक्रोज चाहिए ना, सुक्रोज की क्रिस्टल्स चाहिए, तो वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, फिर तो प्रोडक्ट हमारे पास वो आया ही नहीं। तो हमने पीएच को मिनिमाइज करना है। दूसरे नंबर पर जो ऑब्जेक्टिव है, उसके अंदर जो इनसॉल्युबल मटेरियल है एंड सम अनडिजायरेबल डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं, उनको हमने रिमूव करना है। तो उसके लिए हम एक अल्कलाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे, लाइम यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों से फॉस्फेटेशन या ये जो भी हम अपने यहाँ पर कैल्शियम का ट्रीटमेंट देंगे, लाइम का ट्रीटमेंट देंगे, अल्कलाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे या मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे। इसका दो ही पर्पज़ हैं, एक तो इसकी रेज इन द पीएच, सेकंड वन रिमूवल ऑफ insoluble material. Target of pH adjustment of the juice is that which will give a syrup pH of 6.5. This is about the optimum for carrying out the crystallization step which follow by giving easy boiling messy liquids. Minimum development of undesirable compounds and color, small decomposition of reducing sugars and little loss of sucrose by inversion. At higher pH level, there is greater development of viscosity and color and substantial losses of reducing sugar, particularly fructose. At the lower pH level, sucrose inversion increases rapidly. Processing a syrup at 6.5 pH will usually give a final molasses pH of about 5.8. So the crystallization is conducted in the range of 6.5 to 5.8. The mixed juice will have to be raised to pH 7.5 in order to obtain syrup of 6.5, because the drop of which occur in the juice heaters, clarifiers and evaporators. तो हमने अल्कलाइजेशन जो अल्कलाइनेशन करनी है वो 7.5 तक चली जाए उसकी, मतलब अल्कलाइन हो जाए मेनली. This increase in acidity is caused by the relatively low reaction with lime and particularly magnesium oxide in the cold, by the formation of organic acid and by loss of ammonia from the decomposition of amino acids present in the sugar juice. The exact pH of juice liming required varies with the composition of the juice. So the routine adjustment of set point is essential. Usually with good quality cane, good clarification also occurs under this type of control. This is, there is good flocculation of suspended matter, rapid settling and overflow of the liquid juice. With poor quality or deteriorated can, it is often impossible to get a clear juice and rapid settling. Milky appearing juice is a sign of sour cane. It is caused by dextrons which by protective collide action prevent good flocculation. इसीलिए जब हम केन जो है उसकी हमारे पास आता है जूस, तो उसकी क्वालिटी जो है वो हम मॉनिटर करते हैं. इन सच केसेस हायर लाइमिंग इज समटाइम हेल्पफुल इवन दो द इफेक्ट्स ऑन शुगर क्रिस्टलाइजेशन आर लेस फेवरेबल. सो द कॉम्प्रोमाइज इज नेसेसरी. यहाँ पर जो अल्कलाइन हमने लाइमिंग करनी है वो हमेशा उसकी प्रॉपर क्वांटिटी जो है वो लाइम की हमने डालनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है वो पीएच रेंज हाई चाहिए. ओके,
हमारे पास जो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल यूज़ होते हैं अल्कलाइजेशन के लिए, पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ होते हैं, ये एडिटिव्स होते हैं जो कि इफ़ेक्टिव होते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए अल्कलाइनेशन के अलावा। स्मॉल क्वांटिटीज़ में डालते हैं हम, 1 to 2 ppm जूस में डाल देते हैं, तो ये फ्लोकुलेशन को इम्प्रूव करती है, रैपिड सेटलिंग करती है, स्मॉलर वॉल्यूम सेटलिंग। दे हैव नो इफेक्ट ऑन पीएच। ठीक है, पोली इलेक्ट्रोलाइट्स का इफेक्ट नहीं होता पीएच के ऊपर। स्टैंडर्ड पोली इलेक्ट्रोस पार्शली हाइड्रोलाइज्ड पोली एक्रिलेमाइड, द पायनियर एजेंट यूज्ड अंडर द ट्रेड नेम ऑफ Saparans, remains as standard. Best point of application is after the juice is heated, and a good place is in the flash tank of the clarifier. A metering pump is necessary to control the addition. अच्छा जी, ज़ाहिरी बात है, या पाइपेट से भी डाल सकते हैं आप बीपीएम में जो आपको चाहिए। यूएस गवर्नमेंट रेगुलेशन क्वांटिटी जो है वो 5 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फाइन। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास अल्कलाइनिंग एजेंट है, ये लाइम से हम रिप्लेस करते हैं क्योंकि ये जो है वो इवेपोरेटर्स की स्केलिंग कम करता है। इवेपोरेटर स्केल इज कंपोज मोस्ट, ये जो इवेपोरेटर्स होते हैं जिसके अंदर हीटिंग करते हैं और हमारी जो जूस है उसको कंसंट्रेट करते हैं, वो हम ज़ाहिरी बात है जब उसके अंदर पाइलिंग ऑफ, जैसे बॉयलर्स के अंदर हो जाती है ना पाइलिंग ऑफ साल्ट्स, इसी तरह इनके अंदर भी साल्ट्स की पाइलिंग हो सकती है। जब साल्ट्स जो हैं वो लग जाते हैं तो इसकी इवेपोरेटर्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसलिए हम जो है वो इवेपोरेटर्स की स्केलिंग का प्रोसेस जो है उसको भी हम मद्देनज़र रखते हैं। इवेपोरेटर स्केल इज कंपोज कैल्शियम सल्फेट जैसे सिलिका, इवन मैग्नीशियम सल्फेट इज सॉल्युबल, लेस कैल्शियम सल्फेट इज डिपॉजिट इन द ट्यूब्स देन व्हेन लाइम इज यूज्ड। अगर डेपोजिशन हो जाती है, इट्स लाइक हमारी अगर वेन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन हो जाए तो ब्लड प्रेशर रेज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर इवेपोरेटर्स में स्केलिंग हो जाए तो हमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स की ज़रूरत पड़ती है इवेपोरेशन के लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, तो ये हमारी फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है। 40% magnesium oxide more basicity per unit weight than quicklime, but even so is more expensive to use. Magnesium oxide थोड़ा expensive होता है। When scaling is a problem, it can be used to replace enough of the lime to control the skin. तो हम यूं कर लेते हैं कि partial use कर लेते हैं magnesium oxide और इसको। As the solubility of magnesium oxide is low, its rate of reaction with juice component is slow, making addition control by pH unsatisfactory unless a retention time of about 15 minutes is allowed. Although there is a lag time in the heaters, better control is obtained from heated juice entering the clarifiers. Quality of the magnesium oxide is extremely important as depending upon conditions of calcination, the product can be highly absorptive are practically non-absorptive for clarification use. Specifications are loss on ignition 2.5%, iodine number 20. ये स्पेसिफिकेशंस हैं हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की कि उसका जो आयोडीन नंबर है 20 होना चाहिए और उसका इग्निशन रेट 2.5% होना चाहिए। इन स्पेसिफिकेशंस के साथ हम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन में दूसरा जो कैल्सिफ के ये कार्बो नोटेशन के अलावा फास्फोटेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्लैरिफिकेशन ऑफ जूस इज डेफिशिएंट। Okay. The clarification of juice deficient in natural phosphate is sometimes helped by increasing the phosphate content. In general, juice containing less than 0.3% phosphate are considered deficient. Adding phosphate to this level give more calcium phosphate flow and often better clarity. एक्चुअली ये जो हम डालते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए,
ये क्या करते हैं, जो सॉल्युबल मटेरियल, जो इनसॉल्युबल या सॉल्युबल मटेरियल होता है, उसको एक फ्लोक की फॉर्म में अब इकट्ठा करके ऊपर उठाते हैं, और जब ऊपर उठ के आते हैं तो हम उनको ऊपर से उतार लेते हैं फ्लॉकुलेशन को। फ्लॉकुलेशन को जब हम रिमूव करते हैं तो हमारे पास बेटर क्लैरिटी आती है। दो चीज़ें होती हैं, या तो जो टर्बिडिटी कॉज कर रहे हैं उनको हम जो है वो सॉल्वलाइज कर लें। सॉल्वलाइज करने से ये होता है कि वो क्लियर लुक देते हैं, या वो फ्लॉक की फॉर्म में ऊपर आ जाएं और हम उनको थ्रू एनी मीन जो है वो उसको सेपरेट कर दें। दो तरीके से क्लैरिफिकेशन आती है, ठीक है। However, because increased volume of settling result in usually या ऊपर आ जाते हैं फ्लोक की फॉर्म में, या फिर वो प्रेसिपिटेट्स बन के नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर हमारे पास क्लियर जूस आ जाते हैं, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है, जूस विद एक्सेस नेचुरल फॉस्फेट और slow settling and give large volumes of settling. Best source of phosphate is phosphoric acid, a liquid which is expensive and present a problem in handling. इसकी हैंडलिंग ऑफ कोर्स एसिड है। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हमने उसकी अल्कलाइजेशन ज़्यादा करनी है, अल्कलाइन फॉर्म में जो है वो हमें उसकी सुक्रोज इन्वर्जन कम होगी। दूसरी तरफ हम फॉस्फोरिक एसिड डाल रहे हैं जो कि अल्टीमेटली उसकी इंक्रीज करेगा एसिडिटी और रिड्यूस करेगा पीएच। इसलिए नॉर्मली हम इन कॉम्बिनेशंस डालते हैं फॉस्फोरिक, जैसे फॉस्फोरिक एसिड अगर नहीं डालते अमोनियम फॉस्फेट डाल देते हैं, जो कि एक सॉल्ट है, न्यूट्रल सा सॉल्ट है। नेक्स्ट सल्फाइटेशन जो है, सल्फर डाइऑक्साइड इज सल्फाइटेशन एंड फॉस्फेटेशन मेनली यूज्ड फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ। मैं ऑलरेडी आपको इसकी जो है वो क्लैरिफिकेशन की डिस्क्रिप्शन भी दे चुकी हूँ कि जब हम इसके अंदर फॉर्मूला जो था, इसका इक्वेशन जो थी वो भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। Sulfur dioxide is widely used both in cane and beet sugar processing to reduce sugar color. It also has a secondary effect in improving the boiling characteristic of messy quartz. The action of sulfur dioxide on color is complex, involving converting color compounds to colorless, preventing color formation by oxidation, and inhibiting color development from reducing sugar and amino acid by browning action. Amino acid तो present है उसके अंदर, वो amino acid जब रिड्यूसिंग शुगर इसके साथ एक्ट करते हैं तो कैरमलाइजेशन कलर भी होता है, इसीलिए शुगर इन्वर्शन रोकते हैं हम। रिड्यूसिंग शुगर अमाइनो एसिड के साथ, रिड्यूसिंग शुगर मीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जब एक्ट करती हैं, sucrose is a non-reducing sugar. Addition of sulfur dioxide gas may be made before or after liming, with little apparent difference in effectiveness. The simplest application is to control the quantity entering the mixed juice relative to the juice flow. Then carry out customary liming by pH control. In order to avoid the corrosiveness of sulfur mixed juice, partially preliminary liming may be used. To simply improve the quality of raw sugar, it is not necessary to have substantial absorption of retention equipment. Sulfur dioxide from a standard sulfur burner can be introduced proportional to flow into the pre-limed mixed juice by means of Venturi unit. A certain percentage of juice recycling will give uniformity. Liquid sulfur dioxide may be introduced directly into the mixed juice line, controlled by means of flow meter. Quantity of sulfur dioxide used in improving the color of raw sugar in the range of 100 to 500 ppm. This compares around 1000 ppm used in method of direct consumption plantation with white sugar. एक क्लैरिफिकेशन यहाँ कर रहे हैं हम इन केन शुगर प्रेपरेशन, और एक क्लैरिफिकेशन होती है केन शुगर से जब रिफाइंड शुगर बनती है वहाँ पर एग्जैक्टली सेम फॉस्फेटेशन सल्फाइटेशन वहाँ पर भी होता है। वो फॉस्फेटेशन और सल्फाइटेशन जो होता है इसी प्रिंसिपल के तहत होता है। आफ्टर दैट हम इनको जूस हीटर्स में डालते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ हीटिंग जूस आर एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय स्टेरिलाइजेशन, completion of chemical reaction with the alkalizing agent, flocculation and removal of gases. Effective gas elimination is obtained by flashing as the juice enters the clarifier. ये जो हीटिंग होती है बड़े फ्लैशेस हीटिंग होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर के लिए करेंगे तो जो भी अमाइनो एसिड और उसके अंदर प्रेजेंट हैं रिड्यूसिंग शुगर वो कैरमलाइज कर देंगे और रिजल्टेंटली कलर लाइट होने की बजाय डार्क हो जाएगा।
Good steam economy is obtained by heating with vapors from the evaporator. Usually this is done in two steps with ये vapors के through जो heating होती है ये better होती है क्योंकि ये penetrate कर जाते हैं. जब penetrate करते हैं और temperature raise करते हैं तो इट्स एक तो इकोनॉमिकली भी हमारे लिए अच्छा है, दूसरा ये है कि एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है हीटिंग की. The optimum juice velocity is 2 meter per second, which gives good heat transfer without too high pressure drop. The governing factor, however, is scaling of the tube, so periodic cleaning is required. Of course, heater scales is relatively soft and can often be removed by cracking with steam followed by flushing with water. If this is not effective, ये तो खैर यूनिट ऑपरेशंस में आ जाता है इसके. दिस इज अप टू, ये हमारी जो क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा प्रोसेस था जो मैंने आपको भी समझाया है. और नेक्स्ट जो है हम वैक्यूम ये जो जितनी भी हीटिंग है इवेपोरेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच.